एक माँ की उम्मीदों को, सपनों को छीन लिया गया, उसके कलेजे के टुकड़े को जुदा कर दिया गया। कसूर सिर्फ इतना कि उसका बेटा आम नहीं था। आरवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए माँ का संघर्ष लगातार जारी है। माँ जानती है उसका बेटा वापस नहीं आएगा, पर न्याय आरवी जैसे बच्चों को जीने का हौसला जरूर दे जाएगा। Just like every single one of us, I am an Indian. ये आप लोगों की जनता पता किस लिए आए? मैं जनता मतलब यहाँ पे अपने बच्चे के इंसाफ के लिए लड़ने आई हूँ। ऐसे बहुत बच्चों का सैक्रिफाइस हो रहा है, बहुत बच्चों का सुसाइड हो रहा है, बुलिंग की वजह से, सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से इन बच्चों को अपनी जान देनी पड़ रही है। इनका इतना मजाक बनाया जाता है, वो मजाक मेंटल हेल्थ को इतना डिस्टर्ब करता है। इनके शब्द बच्चों को ऐसे मार रहे हैं, बच्चे जान दे रहे हैं अपनी। तो हम यहाँ पर और बच्चों की आवाज़, मेरे बच्चे की आवाज़ के साथ और सारे बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए अपनी आवाज़ रखने के लिए, ताकि सरकार सबके कानों तक जाए और ऐसा न्याय किसी और बच्चे के साथ ना हो। और ये बच्चे कौन हैं? all those monsters who killed us home, proving your hate. I don't want to talk to you. I don't think any one of us should talk to you, but for some reason we have to. Because for some reason some of us find that we can somehow cure whatever you are going through with time. I would just like to say, go fuck yourself. I hope you get the help you 2 need. साल होने वाले हैं I और hope आज भी that मैं you अपने बच्चे के get rid of your हिसाब influence, but please, बाहर if लगा you're रही doing हूँ, this, करके go fuck yourself. आज To all the नहाने kids, का Pranshi, तारक के Sachin, साथ और भी Audi, कारण countless है others, कि ऐसे I'm और sorry, बच्चों I की hope you can do better, but I'm sorry that you are not here with us करोड़ों anymore. बच्चे परेशान हैं। I'm sorry मैंने that the love बच्चे you're के जाने के बाद kind एक कैंपेन you चलाया है have to go on जस्टिस this फॉर in your आरवी memories के नाम as से, I'm और sorry that आरवी you are not मल्होत्रा here. 82 मेरा चैनल Because है, all you need is इंस्टाग्राम पे happiness. आप उसको And देख all the सकते other हो। पूरी people who are कहानी मेरे sitting बच्चे here, की देख standing सकते here, हो। all the other kids who are like us, मैंने देखा जब who उन्हें are शुरू किया कि queer, who are जैसे और trans, who बहुत are बच्चे gay, सफर कर रहे हैं, bisexual, जैसे और lesbian, बहुत anything that you बच्चों की identify, जाने जा रही हैं। even तो if मैं you don't अपने आप को identify ऐसे as one बाहर of us, रोक नहीं even पाई if you are a और kid, आज मैं if you यहाँ are खड़ी हूँ growing up in अपनी this बात generation, रखने के लिए। people मैं who are जब coming बात out of रखूंगी this तो generation, और माओ को please सपोर्ट know मिलेगा और that बच्चों this को सपोर्ट community, मिलेगा। we are ये सब trying बच्चे our very किसी की best जान है, so we can be there for you. इनका अपमान It मत doesn't कीजिए, stop इनको here. एक्सेप्ट We कीजिए, will try. यही रिक्वेस्ट We है। will stay in this country. We will stay. Justice! Justice for Arvi! We want justice! Justice for Arvi! We want justice for Arvi! We want justice! Justice for Arvi! We want justice! Justice
justice for Army. We want justice. 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 Justice for Army. आजादी आजादी जिंदगी आजादी 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 हम लेके रहेंगे आजादी कौन कलाम जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 justice आजादी जस्टिस justice आजादी 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 justice for आरवे Viva! जस्टिस 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 Justice for आरवे जस्टिस Justice for आरवे जस्टिस Justice for आरवे we want जस्टिस आरवे जस्टिस Justice for आरवे want जस्टिस Justice for आरवे जस्टिस आरवे we want justice justice for Arve 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 We want justice justice for Justice! आजादी justice azadi justice azadi justice azadi justice azadi we want justice justice for Arve we want justice justice for Arve we want justice justice for Arve we want justice justice azadi बोल दीजिए Arve आप क्या हुआ आप क्यों फोल्ड कर रहे हैं जस्टिस Justice for आरवे जस्टिस आरवे जस्टिस आरवे जस्टिस आरवे जस्टिस आरवे जस्टिस आरवे जस्टिस justice आरवे 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 आजादी 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 आजादी
justice for RV. We want justice, justice for RV. Justice, 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 justice, Justice for RV. Justice, RV. Justice, RV. Azadi, Azadi. Pani. Justice for we need justice for We want
want Army. We want Justice. Justice for 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 Army. Justice Army. Justice Azadi. Justice. Azadi. Justice Azadi. Justice Azadi. Justice Azadi. Justice Azadi. Justice Azadi. हमें चाहिए arrest किया गया that he suicided. He had to commit suicide because a lot of people troll him on Instagram. A lot of people bullied him on Instagram. So we need to educate people that being the part of LGBTQ is totally normal. We need to normalize it. A lot of people don't even know what is the meaning of sexuality and what is the meaning of gender. There is a difference between it. So we need to educate. Education is the most important part in this. If we educate people, we can change the community. मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि आपने आरवे को मारा, प्रांशु को मारा और यहाँ पर और आरवे और प्रांशु खड़े हैं इसमें। आप सोशल मीडिया में बुली करते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, लाइव खड़े हैं, आप बुली कीजिए। हम एक है, पूरी मुट्ठी में है और मुट्ठी को तोड़ना आसान नहीं होता। अभी एक न्यूज़ मीडिया ने पूछा कि खट्टर गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनके पास टाइम है बिग बॉस के विनर से बात करने का, बट हमसे बात करने का कोई टाइम नहीं। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करने का, उनके अनुभक्तों को हमें ट्रोल करने का खूब टाइम है, बट अगर सामने हम आज लाइव खड़े हैं, कम ट्रोलर, हम मुट्ठी बनकर खड़े हैं। किसी की हिम्मत है कि जितने भी लोग खड़े हैं स्ट्रेट, जिनके घर में भी कल को हो सकते हैं बच्चे, अगर आपको ट्रोल करना है अभी करके दिखाओ। हम यही हैं, पूरी मुट्ठी बनकर खड़े हैं और आपको दिखाते हैं हमारी ताकत क्या है। हम आगे हैं, हम प्रांशु हैं और हम नहीं डरने वाले। और इस सिटिंग गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें हमारा अधिकार दीजिए और देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि हम नेचुरली गे, लेस्बियन, क्वेयर, हम यही सब है और आप हमें बदल नहीं सकते। और आपको एक चेंज करना, और आप कहते हैं वेस्टर्न है, वेस्टर्न भी नहीं हो सकता। आप जीन्स वेयर कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, those are western. If you want to change that, then change that. आप ये चेंज नहीं कर सकते। This is our sexuality, right? Justice for अभी तुरंत का इंसिडेंट है, जैसे आप ध्यान दे सकते हो, हम हील पहने हुए इस टाइम पे, बस हम एंट्री किए तो सर कुछ नहीं किए। उस एंट्री पॉइंट पे ना ही मेल सिक्योरिटी हमको चेकिंग करने का अलाउ कर रहा था, ना ही विमेन सिक्योरिटी चेकिंग करने का अलाउ कर रहा था। ऊपर से नीचे तक प्रॉपर हम मेल आइडेंटिफाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक हील पहन लिए। ना ही विमेन चेक करने को रेडी हो रही है, ना ही मेल चेक करने को रेडी हो रहे हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटा सा पार्ट था। इमेजिन करो जब किसी को पता रहता है कि ये कम्युनिटी का बंदा है, हर एक दिन डेली बेसिस पे ट्रोलिंग होता है, और यदि खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स सपोर्टिव निकल जाए, आपके पेरेंट्स आपका साथ देते रहेंगे ना, तो सोसाइटी आपको तो बोलेगा ही बोलेगा, साथ में आपके माँ बाप को इतना सुनाएगा ना कि आप अंदर से खोखले होने स्टार्ट हो जाओगे। आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स के बहुत बोलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। उनके लिए उनका बच्चा पहले आता है, बाद में दुनिया आता है। सिर्फ मेरा समर्थन के लिए आज समाज में दो शब्द बोल देते हैं हमको लेके, इसलिए आज समाज वालों के लिए मेरे माँ बाप गलत हो चुके हैं। हर एक पॉइंट पे, चाहे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो, चाहे कुछ भी यूज़ करना हो, ऐसे घूमते हैं कि लगता है हर एक इंसान सेक्स वर्कर है। यहाँ पे सेक्स वर्किंग करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो उनका पर्सनल चॉइस है, मगर सिर्फ अटायर की वजह से किसी को आप जज कर रहे हो, जजमेंट इज रॉन्ग। हम जजमेंट के साथ नहीं, हम जजमेंट के खिलाफ हैं। आप ये सोचो सिर्फ एक हील पहनने के लिए हम ना ही विमेन लाइन में चेकिंग करा सकते, ना ही मेल लाइन में चेकिंग करा सकते हैं। उससे दुनिया में वर्स्ट क्या होगा? आप ना ही चेकिंग करा सकते हो, ना ही आप बाहर पब्लिकली निकल सकते हो, आप घूम के भी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। इतना प्रॉब्लम हम लोग हर दिन देखते हैं। सपोर्टिव होने के बाद भी, मेरे घर में सपोर्टिव होने के बाद भी हम हर एक दिन डर के सहम के रहते हैं कि पब्लिकली कब कौन क्या बोल के चला जाए। आज इसके साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ केशु, एंड मैं मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एज अ नॉन बाइनरी आई हैव टू फेस लॉस इन मेट्रो। जब मैं
मेट्रो में जाता हूँ तो वहाँ पर मेंस के लिए होता है, वुमेंस के लिए होता है, लेकिन ट्रांस के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई ट्रांस भी वहाँ पे जाता है ड्रेसअप करके तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाया जाता है कि तुम क्या हो, तुम आदमी हो या औरत हो, हमसे ये पूछा जाता है। उसके बाद हम उनको क्या जवाब देंगे कि ट्रांस के लिए है, मेंस के लिए है और वुमेंस के लिए है, लेकिन ट्रांस के लिए कोई जगह नहीं है। दिस इज अबाउट माई सेक्सुअलिटी। अगर मैंने अपने घर में जब एक्सेप्ट करा खुद को, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, बट अगर हम बात करें समाज की तो समाज अभी भी इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है। अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग समझना नहीं चाहते। इट्स अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एजुकेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एजुकेशन में गेज, ट्रांस, लेस्बियन सब आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि समाज में सिर्फ तीन जेंडर्स हैं, मैन है, वुमेन्स है और ट्रांस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर लोग सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अच्छे से समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि इसके अलावा 80+ जेंडर्स और भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज में सब इसको पढ़े, एजुकेट हो, उसके बाद मतलब लोगों का मजाक उड़ाए, लोगों के ड्रेसिंग को लेके। आज हम यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज 2 लोगों ने सुसाइड कर ली, 2 बच्चों ने सुसाइड करी। उन बच्चों का कोई दोष नहीं था, वो क्या करते थे, सिर्फ मेकअप करते थे। एंड मेकअप की वजह से उन लोगों को सोशल ऑनलाइन ट्रोल किया गया, उनको समाज में लोगों ने गालियाँ दी, जिसकी वजह से आज उन्होंने सुसाइड कर ली। और एक माँ उनके हक के लिए लड़ रही है आज भी। तो समाज में हम चाहते हैं कि अवेयरनेस आए, लोग इस चीज़ को समझें, लोग इसका मजाक ना उड़ाएं। समाज में सब चीज़ हो रही है, सत्याग्रह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको लेके राइट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी को लेके कोई राइट्स नहीं हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा सा एक एक्शन ले और हमें अलग से राइट्स मिले, लोग हमारा मजाक ना उड़ाए। ट्रांस के लिए अलग राइट्स हो और हमारे लिए अलग राइट्स हो। ट्रांस एक अलग चीज़ हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशली लोगों को ट्रोल किया जाता है। हम अगर कुछ भी पहने, मेकअप करें, लाइनर लगाएं, साड़ी पहने, लोग हमें उसके लिए भी ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे सबको लेके। आज की मम्मा ने इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो, लोग किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जो रेप है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता, सोशली भी होता है, मेंटली भी होता है। तो हम चाहते हैं कि समाज में अवेयरनेस आए और बच्चा ऐसा कोई स्टेप ना ले। हमारी मम्मा भी इस चीज़ को बताएंगे आपको। मैं चाहती हूँ आप इन बच्चों से सुनिए, बच्चों से जानिए इन्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। आप घर बैठे नहीं समझ सकते, इसीलिए आज ये बच्चे सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप इनकी जुबानी ना सुनेंगे, आपको पता चलेगा इन्हें समाज में क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। आप बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं स्कूल में लगातार जितनी बुलिंग सहन की है, चाहे वो बचपन से लेके होगी, तुम क्या कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, टीचर्स ने भी लगातार ये बोला, स्टूडेंट्स ने भी बोला, लगातार टोंट मारना, परेशान करना, हरास करना, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलो तब भी कि तुम कैसे चल रहे हो, कैसे पहन रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो। हर समय हमें सिग्नाइज किया जाता है। अगर हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, जब पूरा स्कूल में हम लोग फर्स्ट आता था, मैं कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट ज़्यादातर मैं पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान इस पर रहता था कि मैं चल कैसे रहा हूँ, मैं चलने के ऊपर कौन मेरे को देख रहा है, क्या बोलेगा। यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं जानते हैं, अगर उनको पता लगे तो वो भी तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तो तुम्हारी सारी क्लास में परेशान कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमें नहीं पता, हम भी लड़कों जैसे बाकी चल रहे हैं वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी क्यों आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। आगे लगातार क्लास में परेशान करना, क्लास से बाहर जाओ तो परेशान करना, स्कूल के बाद परेशान करना, घर में परेशान करना, इतना ट्रॉमाटाइजिंग रहता है कि बचपन जब से पैदा हुए लगातार 20 सालों से 18 साल से जब तक मेरी स्कूलिंग चली है, लगातार एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होगा, जिस दिन उन लोगों ने कोई ना कोई टोंट ना मारा होगा, जिस दिन परेशानी ना की हो। फिर हमने सोचा कि सिर्फ कॉलेज जाके खत्म हो जाए, कॉलेज में वही है, सोसाइटी में जाओ वहाँ पे वही है। अब उन लोगों को जेंडर सैनिटाइजेशन नहीं है तो वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको देने वाला कोई नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। अगर पता लगता है फिर शायद जाके हो। अब कुछ है लाइक जिनको पता होता तो वो नहीं करते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ देम कर ही रहे हैं लगातार। अगर मेट्रो में आ रहे हैं, अब मैं हील पहन के आया हुआ हूँ, तो लगातार पुलिस वाले ही है, वही पूछ लेते हैं कि क्या पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर वहाँ नहीं परेशान कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो जाए, मेट्रो में, आज मेट्रो में जैसे आया था, अब यहाँ आते आते लोगों ने इतना ऑब्जेक्टिफाई किया, इतना ऑब्जेक्टिव ऐसे हंस रहे थे पहले क्या पहना हो, या फिर लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे बिना परमिशन लिए, वीडियो बना रहे हैं, अपने आप पोस्ट कर रहे हैं। मैंने तो अपना लॉकअप किया जैसा मेरे को करना था, लेकिन इसमें मतलब ये ढूंढना कि उनको मैंने परमिशन दे दी है कि तुम मेरी फोटोज लो, जाके कहीं भी अपलोड कर दो। फिर इतने
गंदे गंदे कैप्शन लिखेंगे, कोई हद नहीं है। अब हमें जैसा फील हो रहा है हम वैसा पहन रहे हैं, हम वैसा ओढ़ रहे हैं, हम वैसा चल रहे हैं, तब फिर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोई ना कोई रहती ही रहती है। अब इसी को लेके हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ करे, वो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए, वो रोके इन चीज़ों को, वो स्कूल के टीचर्स को इसके बारे में बताए, पुलिस को बताए, ताकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता लगना चाहिए, हर जगह पता लगना चाहिए। जब तक उनको नहीं पता लगेगा वो नॉर्मलाइज क्यों करेंगे? बोलिंग इतना नॉर्मलाइज कर दिए तो बोलिंग हमारे यूथ के हम अपने कलीग से बोलते हैं कि तुम लोग बाहर की चीजें पहली बात तो पता सोसाइटी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है। वैसे तो पहली बात माँ बाप तो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट करना, उसके बाद माँ बाप हमें एक्सेप्ट करें, उसके बाद सोसाइटी। ये बहुत बड़ी कंडीशन। अगर माँ बाप भी किसी कंडीशन में एक्सेप्ट भी करे ना हमें, तो सोसाइटी इतनी बड़ी टॉक्सिक है कि वो एक्सेप्ट नहीं करने देती। रिश्तेदार, बुआ, चाचा, ताऊ, सबको एक उंगल होती है कि बेटे ने लड़के ने नेल पेंट क्यों लगाई, नेल्स क्यों बढ़ाए, नेल पेंट क्यों लगाई, और साड़ी क्यों पहनी, फ्रॉक क्यों पहनी, स्कर्ट क्यों पहनी, क्रॉप टॉप क्यों पहना। इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस वजह से बेचारे पेरेंट्स को भी, वैसे देखा जाए जितना हमारा स्ट्रगल होता है ना उतना हमारे माँ बाप का भी होता है। माँ बाप हमारे चक्कर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और लोगों का तो काम है कहना, कब तक कहते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, हमें काम दे दो तो बोलने दो। उसको जिंदा रहने दो। वो कहता था उसकी लड़कियों वाले शौक है, तो क्या गलत था, क्या गलत किया उसने?